Good morning, students. Now, today we will solve some numericals based over conductance, specific conductance, molar conductance, equivalent conductance and cell constant. तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल है the specific conductance of n by 10 solution of KCl is 0.002765 Siemens per centimeter. If the resistance of the solution placed in the cell is 2000 ohm, what is the cell constant? तो फर्स्टली हम एक टेबल बनाएंगे, मीन्स गिवन क्या है हमको वो हम लिखेंगे. तो कंसंट्रेशन दिया है KCl सॉल्यूशन का, इट इज n by 10, ठीक है. और इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स कपा दिया है 0.002765 Siemens per centimeter. ठीक. If the resistance of the solution, resistance is given और ये दिया है 2000 ohm. What is the cell constant? Means G star आपको पूछा है, ठीक है. आपको पता है kappa means specific conductance equals to conductance into cell constant. फॉर्मूला पता है. It means kappa equals to conductance is reciprocal of resistance, यानी 1 over R into G star. It means cell constant equals to kappa into R. See here, this G is conductance, this G star is cell constant, or this kappa is specific conductance और conductivity, ठीक है. तो kappa value is 0.00275 multiplied by R. It is 2000. That means G star equals to, so multiply this one, you will get the answer, and it is 5.53 per centimeter. Is it clear? So another numerical is, क्वेश्चन दिया है a conductivity of 0.2 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens per centimeter. Calculate its molar conductivity. तो हमें दिया क्या है यहाँ पर, तो given is concentration of KCl is given, it is 0.2 m. Temperature is given, it is 298 Kelvin. Kappa for KCl solution is given 0.0248 Siemens per centimeter, and molar conductivity lambda m is to calculate, and lambda m is equal to kappa into 1000 over molarity. This is to calculate. See here, kappa given है, molarity given है, सीधा we'll substitute the values. कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन मोलरिटी में दे करके नॉर्मेलिटी में दिया होता है, तो उस केस में आप चेंज कर देना नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में. अब फार्मूला होता है n over m इक्वल टू एसिडिटी या फिर बेसिसिटी या फिर वैलेंसी.
ठीक है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन मोलरिटी में ना दी हुई हो तो आप उसको नॉर्मेलिटी में दी हुई हो तो आप उसको मोलरिटी में इस फार्मूले से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इज 0.0248 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर मोलरिटी इज 0.2। तो फाइनली you will get 124. This must Siemens cm square mole inverse. This is your answer. ठीक है। यहां पर हम हर कॉन्सेप्ट पे लगभग हर टाइप का एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे और इसी उसमें बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। अगला न्यूमेरिकल है calculate the equivalent conductivity of 1m H2SO4 solution if its conductivity is 26 into 10 to the power minus 2 Siemens per centimeter. Atomic weight of sulfur is 32. So again we'll write here what is given to us. Calculate the equivalent conductivity हमें निकालनी है। concentration, yes, concentration of H2SO4 is given, it is 1m. If its conductivity means kappa for H2SO4 दिया है 26 into 10 to the power minus 2 Siemens per centimeter और equivalent conductivity means lambda equivalent is to calculate or formula you know it is kappa into 1000 over normality. This is to calculate. देखिए कप्पा हमें गिवन है, नॉर्मेलिटी हमें पता करनी है, जब कंसंट्रेशन यहां पर हमको मोलरिटी में दिया है। तो नाउ वी कन्वर्ट दिस मोलरिटी इनटू नॉर्मेलिटी। द फार्मूला इज नॉर्मेलिटी ओवर मोलरिटी इक्वल्स टू, ये क्या है, एसिड। तो एसिड हैव अ बेसिसिटी इक्वल्स टू इट्स बेसिसिटी। और ध्यान रखिए फॉर H2SO4 जो बेसिसिटी होती है इज इक्वल टू 2। क्यों? एज H2SO4 जो है 2H प्लस आयन फॉर्निश करता है। नंबर ऑफ H प्लस आयन फॉर्निश बाय एन एसिड इज इट्स बेसिसिटी। नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करना है, मोलरिटी 1 है इक्वल्स टू बेसिसिटी 2, यानी कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 2, यानी 1m H2SO4 का मतलब हुआ ये 2n H2SO4 है। Is it clear? So now substitute the values. Kappa 26 into 10 to the power minus 2 multiplied by 1000 over normality comes 2. तो ये आएगा, यानी lambda equivalent equals to 130 Siemens cm square gram equivalent inverse. This is your answer. तो अगला न्यूमेरिकल है a potential difference of 20 volt applied to the ends of a column of m/10 AgNO3 solution. एक कॉलम है उसमें m/10 AgNO3 सॉल्यूशन है और उसमें 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कॉलम का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ और उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। गिव अ करंट ऑफ 0.20 एम्पियर, ये करंट हो गया। कैलकुलेट स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विल नोट डाउन कि हमें गिवन क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट और जो सॉल्यूशन फील्ड है दैट वन इज AgNO3 और कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 इज 1/10 यानी m यानी m/10। 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर मींस ट्वाइस इनटू रेडियस इज हाउ मच, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना ये डायमीटर है उसका। 12 सेंटीमीटर इन लेंथ
L equals to 12 centimeter. Current I equals to 0.20 ampere. Calculate specific and molar conductivities. Specific conductivities means, तो फर्स्टली आपको कैलकुलेट करना है कप्पा. तो कप्पा इक्वल्स टू, तो कैसे निकलता है, कप्पा इक्वल्स टू 1/r इंटू जी स्टार. तो इसका मतलब कप्पा फाइंड करने के लिए आपको r और सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए. सेकेंडली फाइंड द मोलर कंडक्टिविटीज मींस lambda m equals to kappa into 1000 over molarity is to calculate. यहाँ पर मोलरिटी हमें नोन है 1/10, केवल कप्पा निकालना है, यहाँ पर r और g स्टार फाइंड करना है. ठीक है, ठीक. तो जो चीजें हमें फाइंड करनी है वो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. सबसे पहले r चाहिए. v equals to 20, I equals to 0.20. तो you knows v equals to ri. It means r equals to v over I. यानी 20 over 0.20. तो it will come 100 over. r determined हो गया. Okay. Now r is calculated. और अब हमें यहां पर चाहिए G स्टार. G स्टार इज सेल कांस्टेंट, और आपको पता है कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है L ओवर A. L हमें गिवन है, A चाहिए. अब कॉलम का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये होता है पाई r स्क्वायर. तो इससे हम निकाल लेंगे. ठीक है, तो यहां 2r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. तो इसकी हेल्प से हमने निकाल लिया. Therefore r क्या हो जाएगा, 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड thus a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर. पाई कितना वैल्यू 3.14 इंटू 2 इंटू 2. तो मल्टीप्लाई दिस वन, तो a की वैल्यू निकल जाएगी, और a की वैल्यू आ रही है 72.56 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपके पास L भी है और A भी है, यानी कि जो G स्टार होगा इक्वल्स टू L ओवर A, यानी 12 ओवर 72.56. तो इस तरह से G स्टार की वैल्यू हो जाएगा 0.9554 पर सेंटीमीटर. ठीक है, अब G स्टार भी मिल गया. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो कप्पा इक्वल्स टू 1 ओवर r की वैल्यू कितनी है, r इज 100 मल्टीप्लाइड बाय G स्टार 0.9554. नाउ इट कम्स, तो ये हो जाएगा 9.554 into 10 to the power minus 3 Siemens cm inverse. Clear? Secondly, calculate the value of molar conductance, molar conductivity. अब कप्पा आपको यहाँ निकल गया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ये हो जाएगा 9.554 into 10 to the power minus 3 into 1000 over molarity. मोलरिटी 1/10 यानी 0.1. तो इसको कैलकुलेट कीजिए. आंसर आएगा इसका 95.54. दिस मच Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो इस तरह से इसके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए. क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. A cell with n/50 KCl solution showed a resistance of 550 ohm at 25 degree Celsius. ठीक है,
the specific conductivity of N by 50 KCl at 25 degrees Celsius is 0.002768 Siemens per centimeter. The cell filled with N by 10 ZnSO4 solution at 25 degrees Celsius shows a resistance of 72.18 ohm. Find the cell constant and molar conductivity of ZnSO4 solution. Okay. See, this type of questions are very important. देखो, कंडक्टिविटी सेल एक ही है, पहली वाली में उसमें KCl सॉल्यूशन फिल्ड है, अब उसको चेंज करके उसमें ZnSO4 सॉल्यूशन फिल किया है, और अब जब आपने ZnSO4 फिल किया है तब आपने उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। देखिए यहां पर जो गिवन है, गिवन आर देयर आर टू सॉल्यूशन, वन इज सॉल्यूशन 1 और अदर वन इज सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन 1 इज KCl और concentration of KCl is given N by 50. Another solution, and temperature is given, it is 25 degrees Celsius. The specific conductivity of N by 50 KCl is this much. Means kappa is given, kappa for KCl is given 0.002768 Siemens per centimeter. The cell filled with N by 10 ZnSO4, अब की बार सेम सेल को ZnSO4 से फिल कर दिया है, and the concentration of ZnSO4 is N by 10. Solution at same temperature 25 showed a resistance of 72.18 ohm. इसका resistance for ZnSO4 is given 72.18 ohm, और resistance for KCl is also given, ये दिया है कितना 550 ohm। ठीक है, हाँ। Find the cell constant, हमें कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट G स्टार, ये कैलकुलेट करना है। सी, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल एक ही है, तो क्योंकि जो सेल कांस्टेंट होता है ये डिपेंड करता है ओवर द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर फील्ड है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए G स्टार की वैल्यूज दोनों कंडीशंस में, दोनों सॉल्यूशंस के केस में सेम ही होगी। तो यहां पर सिंस जो सेल है इज सेम, तो देयरफॉर जो वैल्यू ऑफ G स्टार होगी विल बी सेम। ठीक है, क्योंकि सेल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ओवर द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेल एक ही है, एक बारी में उसमें KCl भरा था, बाद में KCl को रिमूव करके ZnSO4 भर दिया है, लेकिन सेल तो सेम ही है, इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस उतना ही है, इलेक्ट्रॉन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही है, तो इसलिए दोनों कंडीशंस में सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, तो G स्टार कैलकुलेट करना है। और सेकेंड वन इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ZnSO4, मींस इस केस के लिए सॉल्यूशन 2 के लिए मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m इज टू कैलकुलेट, और इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इनटू 1000 ओवर मोलैरिटी। दिस इज टू कैलकुलेट। ठीक है, कप्पा फॉर विच? कप्पा फॉर ZnSO4। ठीक है, यहां कप्पा है किसके लिए? KCl के लिए। तो इस डेटा की हेल्प से पहले G स्टार निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कप्पा इज इक्वल टू 1 ओवर R इंटू G स्टार, यानी कप्पा KCl R इक्वल टू KCl। ठीक है, तो यानी
G star equals to kappa for KCl into R for KCl. तो kappa is 0.002768 multiplied by R 550. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन पर ये निकलेगा 1.5224 पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। जी स्टार सेल कांस्टेंट कैलकुलेट हो गया। नाउ अब क्योंकि सेल एक ही है, जी स्टार की वैल्यू सेम रहेगी, तो इस जी स्टार की हेल्प से कप्पा फाइंड कीजिए फॉर ZnSO4। ठीक है, तो सिंस नाउ kappa ZnSO4 equals to 1 over R ZnSO4 into G star। ठीक है, यानी G star is 1.5224 over R ZnSO4, it is 72.18। तो कैलकुलेट करें यहां से इसको, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02109 सीमेंस पर सेंटीमीटर। अब आपने कप्पा भी निकाल लिया। अब एक दिक्कत और है, मोलरिटी। हमें कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में दिया हुआ है, हमें मोलरिटी में चाहिए। आपको पता है कि नॉर्मेलिटी ओवर मोलरिटी इज इक्वल टू एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर वैलेंसी। ZnSO4 में Zn की वैलेंसी 2 है, यानी 2। नॉर्मेलिटी गिवन है, इट इज 0.1 ओवर m इक्वल्स टू 2, यानी m इक्वल्स टू 1 ओवर 20, यानी m इक्वल्स टू 0.05। आपने मोलरिटी निकाल लिया। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें वैल्यूज। तो यहां हो गया कप्पा इक्वल्स टू, तो 0.02109 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर मोलरिटी कम्स हाउ मच, 0.05। तो कैलकुलेट करिए इसको, तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 421.8 Siemens Cm square mole inverse। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।